Okay, hello everyone. How are you? I hope you are all good and fine. So, in last videos, I think we will discussed about. Sorry for this disturbance. I think we will not we discussed about data types, variables, sorry, if else. Okay. So in this video, we are going to see what is loops. So Python basically used the while loop. Okay, for loop is there but not using. Okay, while loop. So first of all, what is loop? hmm? You can say that a loop, it I'm so sorry, where it gone? So sorry, I didn't notice it. I just started to describing things, but where it is. Yeah, here it is. Okay, so let's see what is loops. So basically, what is loop? I think you all are know aware about it, that loop is a process. Okay, it is a process of iteration. What we can say, that it is a process of iteration. Iteration means it will do some work for some time or some number of times. Okay, if we discussed about thing like we have to print some numbers in 5 times or 7 times. Is it a good way to write 1, 2, 3, 4, 5 one by one? It will take time, okay? It will take time and memories and your also energies, okay? It will take time. But to overcome this thing, the loops are discovered, okay? Or loops are generated or created, okay? So, what is loop do? Loops do the same thing. You have to declare it one time and and their conditions, and it will repeatedly. Okay, it will repeatedly displays the things you want to display at 5 times or 6 times or 7 times. Okay, so isn't it easy? Okay, it is easy to using loops. Okay, I will give you some questions first of all. Otherwise, I will forget that. So write down what is loops. Okay, first question. And see, I'm only discussing these questions in this video. I'm not going to give you any questions other than this video. See, like Sapna ma'am did, she gave you students like the questions in what format? Yeah, in document format. But I'm not going to give you any questions. I'm only give you this in this video, and you have to write it down in your assignment and give me and show me in any way, like WhatsApp or email or anything. So you have to show me, and I'm going to check you that you are going to writing it or not. So first of all, we will see that what is loops. नहीं, loops तो हो गया ना. हाँ, so loops are basically two types in a Python. So Python has two primitive types loops. Okay, first is while loop and second is for loop. For loop is easy. Okay, see, Python is really a very easy language. If you are a beginner, okay, you don't know what is C, what is C++, what is Java, but you want to know a programming language that you can try and become a programmer in that particular video, I mean in that particular language. So the Python is the best. So consider it as a best language at all. So see, there are two types of loops. First is while loop and second is for loop. Okay, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि लूप दो मीन्स लूप क्यों काम करता है, एक ही चीज़ को रिपीटेडली दिखाने के लिए. ठीक है, एक ही चीज़ को रिपीटेडली दिखाने के लिए काम करता है. तो इसके वे भी होते हैं, किस वे में आप दिखाना चाहते हैं, मीन्स किस किस वे में आप इसे डिस्क्राइब करोगे. तो इससे होते हैं इसमें पाइथन में क्या होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं. ठीक है, वाइल लूप्स एंड मीन्स दिस इज अ टू वाइल. ओके, एंड फॉर लूप. सो no, do while, not only while. Okay, so what while loop do? So yeah, okay,
with the while loop we can execute the set of statement as long as the condition is true. So जब तक condition true होगी वो चीज़ एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. फॉर द एग्जाम्पल यू कैन सी दैट द प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज़ लेस दैन 6. आई कब तक प्रिंट होगा? जब तक वो लेस दैन 6 नहीं होगा. सो वो चेक करता रहेगा. तो चेक कैसे करेगा? आई इक्वल्स टू 1, हमने आई की वैल्यू पहले ही दे दी 1, ठीक है. आई की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई है. तो 1 6 से छोटा है, ऑफकोर्स ये 6 से छोटा है, तो वो प्रिंट करेगा. देन आई प्लस इक्वल्स टू 1. ओके, आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, बट ये शॉर्ट हैंड है तो ये ईजी रहता है लिखने में. ओके, दैट्स वाई वी विल, यहाँ पे ये हमने यूज़ किया है. आदत हो गई है वी विल बोलने की, दैट्स वाई निकल जाता है कभी कभी. सो क्या होता है कि आई प्लस इक्वल्स टू 1 का कंसेप्ट क्या है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. तो ये क्या करेगा? आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा. तो आई की वैल्यू अब क्या होगी? 2. 2 को वाइल लूप में जाएगा तो उसको कंसिडर करेगा, कंडीशन चेक करेगा. 2 6 से छोटा है, हाँ 6 से छोटा है, तो प्रिंट कर देगा. फिर अगेन आई की वैल्यू बढ़ेगी. ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो जब तक 6 से छोटी, 6 के इक्वल भी नहीं, 6 से छोटी ही होनी चाहिए, तो वो 5 तक प्रिंट करेगा. तो क्या क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5. 6 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 6 से हमने क्या कौन सी कंडीशन दी थी? लेस देन दी थी, तो इसलिए लेस देन तक ही होगा, मीन्स 5 तक ही होगा. इफ़ अगर हम लेस देन इक्वल्स टू देते ना तो वो 6 भी प्रिंट करता, ठीक है. तो बट हाँ, आप लूप में कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको 1 से वैल्यू बढ़ानी रहती है जो भी आपने वेरिएबल लूप में कंसिडर किया होता है. जैसे कि इसमें आई कंसिडर किया है तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ती है, ठीक है. 1 से बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं 1 से बढ़े, बट उसकी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ती है विद इन द कंडीशन, तब जाके वो रिपीटेडली होगा वर्क. क्योंकि अगर एक ही आई की वैल्यू अगर 1 ही रहेगी तो वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है. अब आता है इसमें ब्रेक. हम ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो रन होगा. उसके बाद अगर जहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो वहाँ पे रुक जाएगा और ब्रेक कर देगा, वहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा, मीन्स एग्जिट कर देगा. ओके, सो विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू, ठीक है. एग्जिट द लूप व्हेन आई इज 3. तो देखो, लूप को मतलब जो अगर हमको आई की वैल्यू 3 मिल जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना वो चलता रहेगा. क्योंकि आई की कंडीशन कब तक सही होगी? 5 तक, पर हमको तो 3 चाहिए, तो वो 5 तक एग्जीक्यूट ना करते हुए 3 जहाँ पे मिल जाए वहीं पे वो ब्रेक कर दे और एग्जीक्यूट हो जाए. इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक, ठीक है. एंड देन कंटिन्यू स्टेटमेंट. हम कंटिन्यू क्यों करते हैं यूज़? ब्रेक का तो समझा, अब कंटिन्यू क्यों यूज़ करते हैं? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट, with the continue statement we can stop the current iteration and continue with the next, ठीक है. क्या होता है ना, continue to next iteration if I is 3. तो क्या होगा कि वो क्या करेगा कि i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वो रोक देगा, उसको डिस्प्ले नहीं करेगा. उसके बाद क्या करेगा? ब्रेक क्या करेगा? वो वैल्यू डिक्लेयर कर देगा जहाँ पे वो ब्रेक होगा. बट कंटिन्यू क्या करेगा? उसको स्टॉप करके वो नेक्स्ट वाली से स्टार्ट करेगा, ठीक है. एंड देन एल्स स्टेटमेंट. इसके अंदर एल्स क्यों? तो इसके अंदर एल्स, विद द एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन ब्लॉक ऑफ कोड वंस व्हेन द कंडीशन इज़ नो लॉन्गर ट्रू. जब तक ट्रू होगी वो रन होगा, जब फॉल्स हो जाएगी उसका एल्स पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है. छोटे छोटे से प्रोग्राम है. आप आइडियली आई थिंक आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, मैंने पहले ही लिंक दे दिया था. आइडियली भी नहीं होगा ना तो ऑनलाइन सर्वर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है. ऑनलाइन सर्वर मोबाइल पे ही करके देख सकते हो जाता है, ठीक है. छोटी सी कंडीशंस होती है. देन अभी हमने क्या देखा? पाइथन का वाइल लूप देखा, ठीक है. अभी हम देखेंगे पाइथन का फॉर लूप. सो फॉर लूप क्या है? अ फॉर लूप इज़ यूज्ड टू इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट is either a list, a tuple, a dictionary, a set, or a string that are which is a list, a tuple, a dictionary, set, string. ये सब क्या है? एक एरे है, ठीक है. स्ट्रिंग नहीं है, बट ये जो बाकी चीज़ है ना, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब एरे हैं. एरे पे वर्क करना मीन्स 1 बाय 1 उसकी एलिमेंट्स चेक करना और उसको डिस्प्ले करना, मीन्स उस पर कुछ कंडीशंस लगाना या स्टेटमेंट्स लगाना, ये काम करता है फॉर, ठीक है. दिस इज़ लेस लाइक फॉर कीवर्ड in other programming languages. Okay, for the work more like a
iterator method as found in object oriented found in other object oriented programming languages. With the for loop we can execute the set of statement once for each item in a list, tuple and etc. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है ना, ये लिस्ट का है. ठीक है, ये लिस्ट का है. ठीक है, तो प्रिंट ईच फ्रूट इन अ लिस्ट. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक एरे. ठीक है, अभी आप लोग को लिस्ट नहीं पता है तो आप एरे कंसीडर करो. एरे आप लोग को पता है कि एरे क्या होता है. ठीक है, एरे कलेक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं. वैसे ही लिस्ट भी एक एलिमेंट है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं. बट लिस्ट का क्या है कि ये म्यूटेबल है. ओके, आप इसको मीन्स एडिटेबल कर सकते हैं, मीन्स इसको एडिट कर सकते हो लिस्ट को. बट बाकी चीज़ें होती हैं ना, लाइक टपल्स, या आप लोग नेक्स्ट पढ़ोगे क्या है. तो उस सब को ना वो अनम्यूटेबल्स है, तो वो एडिट नहीं कर सकते उसमें. इफ़ यू जैसे कि कॉन्स्ट कीवर्ड होता है ना, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो डिक्लेयर हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट. वैसे ही इसमें टपल्स में भी होता है. यू कैन ऐड बट यू कैन चेंज. आपको ऐड करना है, यू कैन ऐड इट ऑन इट बट यू कांट चेंज एनीथिंग. यू कैन ऐड, यू कैन रिमूव बट यू कांट चेंज एनीथिंग. मीन्स एनी डेटा आप चेंज नहीं कर सकते. मीन्स आपको अगर रिप्लेस करना है 2 को 3 से तो आप वो नहीं कर सकते. ठीक है, फ्रूट्स, एप्पल्स, बनाना, चेरीज फॉर. तो ये क्या करेगा, एक्स क्या हो गया, एक्स जो एप्पल, बनाना, चेरी हो गया वो एक्स कंसिडर किया. फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो एक्स क्या हो गए, एलिमेंट हो गए कहाँ के, फ्रूट्स के. तो 1 बाय 1 उसे प्रिंट करेगा. ये होता है फॉर लूप. ठीक है, सो हमें क्या होता है ना, इसको इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है. इंडेक्सिंग कब देना रहता है, इंडेक्सिंग मीन्स उसकी जो पोजीशंस है वो कब देनी पड़ती है, जब हमें कुछ स्पेसिफिक पोजीशन से हमें उसको प्रिंट कराना हो. ओके, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गिव द इंडेक्सिंग. ओके, सो जैसे कि जावा वगैरह में क्या होता है, यू हैव टू पुट द इंडेक्स लाइक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और i. ठीक है, बट इन दिस यू डोंट हैव टू पुट. सो लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग. अरे यार कितने मैसेजेस आ रहे हैं. even strings are iterable objects. they contain a sequence of character. देखो इसमें क्या होता है ना, स्ट्रिंग्स को भी हम लूप में कंसिडर कर सकते हैं. सो ये क्या करेगा, जो एग्जांपल है ना फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, तो ये क्या करेगा 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर्स. ठीक है, प्रिंट करता जाएगा. कैरेक्टर्स हियर इज बी अलग कैरेक्टर है, ए अलग कैरेक्टर है, एन अलग कैरेक्टर है, ए अलग कैरेक्टर है. ये 1 बाय 1 वो कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा. अगर वो रिपीटेड हो रहे हैं तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जितने कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा. सो इसमें क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया था. ब्रेक क्या करती है, वो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वो वहाँ पे टर्मिनेट कर देगा. ठीक है, एंड देन कंटिन्यू का भी वही है कि जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी वो उसको डिस्प्ले नहीं करते हुए नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा. सो यहाँ पे एक होता है रेंज फंक्शन. ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है कि रेंज फंक्शन क्या करेगा कि आपको जैसे कि देखिए है प्रिंट फॉर आई इन रेंज 6. रेंज क्या हो गया, 1 से लेके नंबर हो गया 6 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रिंट करो. ठीक है, तो पर प्रॉब्लम क्या है, 6 है तो वो क्या करेगा 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा. क्यों 5 तक प्रिंट करेगा. ठीक है, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है. जैसे कि मैंने कहा ये सब एरे से है, तो ये क्या करेगा 0 से इंडेक्सिंग लेके 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा. 0 से 5 तक कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं. 0 को भी 1 एलिमेंट कंसिडर करो एंड देन 5, तो दे बिकम 6. ओके, एग्जाम्पल्स रेंज का हो गया. रेंज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना वो 1 होती है. बट यू हैव इसमें क्या हुआ है ना, क्या हुआ है इसमें, हाँ ये इसमें क्या किया है ना कि पहले उसने क्या किया है कि पैरामीटर्स दिया है 230, वो 2 से 233. तो पहला वाला जो है ना वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आप जो प्रिंट करोगे वो कहाँ से प्रिंट करोगे, तो आप प्रिंट करोगे वो 2 से करोगे. कहाँ तक करोगे, 30 तक करोगे. और 3 क्या होगी, इंक्रीमेंट वैल्यू. जैसे i=i+1 करते हैं ना तो 1 से वैल्यू बढ़ती है वैसे, पर इसमें क्या होगी वो 3 से वैल्यू बढ़ेगी. इसीलिए ये थर्ड वाला पैरामीटर होता है बढ़ाने, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट के लिए. सी
जो पूरी चीज़ें हैं वो 2 लाइन में आ गई। इतना सिंपल होता है, इस वजह से ही हम ये पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब हो गया लूप। जब तक एग्जीक्यूट होगा ठीक है, नहीं होगा तो सेकेंड वाली प्रिंट कर देगा। सो अब आया नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। ठीक है, सो मैं एग्जांपल समझा देती हूँ इसमें। लूप के अंदर लूप क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने बबल सॉर्ट पढ़ा होगा ना, पहले आई वाली कंडीशन आती है, पहला वो पूरा चेक करता है, फिर अंदर चेक करता है जे वाली कंडीशन देके। तो इसमें क्या हो गया है ना कि दो लिस्ट कंसिडर की गई है, एक एडजेक्टिव एंड दूसरा फ्रूट्स। एडजेक्टिव क्या है, रेड। एप्पल क्या होता है, रेड। बनाना होता है बिग। चेरी होती है टेस्टी। ठीक है, ये उसके प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो क्या है कि जो स्टेटमेंट है ना, फॉर आई इन एडजेक्टिव्स एडीजे, उसको चेक करो। ठीक है, पर उसके साथ साथ अंदर में वाई को भी चेक करो। वाई क्या हो गया, फ्रूट्स को कह दिया, और वो क्या करेगा, पूरा प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कैसे करेगा, एक्स वाई। एक्स क्या हो गया, पहला हो गया रेड एप्पल, तो वो कैसे जो इसको प्रिंट मिलेगा ना, वो कैसे मिलेगा, रेड एप्पल बिग बनाना टेस्टी चेरी। ऐसे ऐसे ये प्रिंट करता जाएगा, दोनों को मिक्स करके, मर्ज करके, कॉन्केटिनेट करके। ठीक है, देन पास स्टेटमेंट, पास क्या करती है, वो पास कर देती है अवॉइड एन एरर, मीन्स आपको वो खाली रखना है, कुछ में कुछ परफॉर्म नहीं करना है वो कंडीशन में, तो वो करती है पास। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, वाइल लूप, फॉर लूप, और उसके अंदर जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स आती है, ब्रेक, कंटिन्यू। सो क्वेश्चंस लिखो। नेक्स्ट लूप्स हो गए, डू लूप, सॉरी वाइल लूप, फॉर लूप, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड ये जो प्रोग्राम्स हैं, और एक प्रोग्राम, हाँ ठीक है, प्रोग्राम लिखो। तुम कौन सा लिखोगे प्रोग्राम, ग्रेटर अमॉन्ग 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर ग्रेटर का। अगर प्रोग्राम नहीं भी आया तो एटलीस्ट लॉजिक लिख देना उसमें कि क्या होता है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को समझा होगा। नहीं समझा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई एम willing to help you. Okay, stay safe.